आपको एक फिक्स टाइम रखना है। आपको लगता है कि मेरा बोर्ड्स हो चुका है बट मुझे रिवीजन करना रहता है बस, तो आप 2 आवर्स का टाइमलाइन सेट कर सकते हैं और वो फिक्स्ड 2 आवर्स आप अपने बोर्ड्स को दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ा और आईपी मैट का नहीं पढ़ा। सेम आप आईपी मैट के लिए भी करिए, एक फिक्स टाइमलाइन 4 आवर्स 5 आवर्स का एक फिक्स टाइमलाइन रखिए और उस फिक्स टाइमलाइन में जितना आप क्वालिटेटिव वर्क कर सकते हैं करिए। आवर्स से कभी मेजर मत करिएगा अपने प्रिपरेशन को। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पैरामीटर टू मेजर योर परफॉर्मेंस। द मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर पुटिंग वर्क, योर क्वालिटी अबाउट द टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट, कि आप जब वो 2 घंटे बैठे हैं पढ़ने तो आप एक्चुअली कुछ ग्रास्प किए हैं। तो कुछ एक फिक्स टाइमलाइन रखिए। अब ये वैरी कर सकता है 60-40, 60% टाइमलाइन टू आईपी मैट, 40 टू बोर्ड्स, 70-30 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर इन करेंटली। बट इन दिस टाइमलाइन ये 2 की एस्पेक्ट्स को अच्छे से एस करना है। I think there are 2 types of people. One who were entirely focusing on boards and were neglecting their IP MAT preparation and waiting for that last 1 month after boards before exam. And there are another type of people who were focusing more on the IP MAT preparation and 30% of time was invested in boards as well. So foremost thing, that don't think that board is not important. Boards are equally and I would say more important than your IP MAT attempt. Boards actually describe you as more disciplined in front of the interview. Let's say you don't go for the IIM Indore. When you appear for CAT, you will realize that many institutes have their criteria for these boards exams, board score. They actually show that you are a disciplined candidate in their class 12 itself. So don't neglect boards, okay? If a dropper is watching it and if you have already have done it and you are not able to score great, don't worry. You are also in a plus point that you have more time to prepare for IP MAT. And अब आप बाकी लोगों को अपने aptitude test score से beat करिए. So coming to the people who are having boards, what you need to do is you need to focus on 2 aspects. First, if you haven't finished your syllabus, please finish it in this timeline. You don't have that benefit of finishing it after your boards. Please finish your IP MAT syllabus as soon as possible. Okay. Parallelly, don't think कि अब मैं पूरा कोर्स खत्म होगा फिर मॉक देना स्टार्ट करूंगा. No. Parallelly, develop the mindset of attempting mocks. There are 2 key aspects of your preparation. The first is mindset to attempt a paper and the second is remembering all the concepts. So you need to focus from this date till the date, let's say 5th April as the timeline where you're going to give majority of your time to IP MAT preparation. So till 5th April, you need to work on these 2 key aspects. The first is attempting more and more mocks. What you can do, every 7th day attempt a mock or at least 5th day attempt a mock. In between what you can do is 3rd day attempt a sectional test. ठीक है, so mock and sectional test should go parallelly all together with completing your rest of the syllabus. And the second part is revising key concepts. Revision can be done in various ways. First is that you can whatever you did in the entire day, in the end of the day, you can revise or remember. अच्छा, आज मैंने ये चैप्टर्स पढ़े थे, नंबर सिस्टम में ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनको लिस्ट डाउन कर सकते हो. और ये रिविजन बहुत एसेंशियल है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स इन 21 बैच हाईलाइटेड मी दैट सर आधा सब कुछ था, लेक्चर्स में भी सब कुछ था, मैंने यहाँ से वो क्वेश्चन किए थे, वो किए थे, बट एक्चुअल पेपर में जाकर क्लिक ही नहीं हुआ कि अरे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट भी करता है. तो आप ये सेंस को समझिए कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है और आगे जो पढ़ने वाले हो उसको आपको याद रखना है. और याद रखने के लिए क्रिएट योर ओन सोर्स ऑफ रिविजन, बुकलेट्स, फॉर्मूला बुक, नोट्स, आइडेंटिटीज, और इनके बाद आपको गो थ्रू करते रहना है. आई नो इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस एंड अ बोरिंग प्रोसेस टू लुक एट द सेम आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट बार बार देखने से ही तो वो हमेशा के लिए रहेगा, एटलीस्ट फॉर अ टाइमलाइन टिल द डे यू अपीयर फॉर द पेपर. सो कीप रिवाइजिंग. हाउ टू डू रिविजन, पूरा दिन भर में जो पढ़ा उसको शाम को रिवाइज कर लिया. सेकेंड, अटेम्प्टिंग मॉक्स. मॉक्स के वक्त आपको लर्निंग लेनी है. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मॉक में आपको पता चलता है कि हाँ ये चैप्टर्स अभी भी बचे हैं, तो उनको पैरेलली खत्म करते जाओ, बट मॉक्स देना स्टार्ट कर दो. मॉक्स आपको रियलाइज करवाएंगे कि हाँ मुझे अभी बहुत सारी जगह पे वर्क करना है, मुझे इतना डिस्टेंस और ट्रैवल करना है. सर टाइम कैसे किया, अभी तो आपने पूरा आईपी मैट का बता दिया, बट व्हाट अबाउट कि बोर्ड्स को क्या करना है आपने बताया ही नहीं. ये तो आपने बस आईपी मैट की तरफ यू आर अगेन बायस्ड. सो आपको एक फिक्स्ड टाइम रखना है, डिपेंडिंग ऑन यू. आपको एक फिक्स टाइम रखना है. आपको लगता है कि मेरा बोर्ड्स हो चुका है बट मुझे रिवीजन करना रहता है बस, तो आप 2 आवर्स का टाइमलाइन सेट कर सकते हैं और वो फिक्स्ड 2 आवर्स आप अपने बोर्ड्स को दीजिए. आवर्स से कभी मेजर मत करिएगा अपने प्रिपरेशन को. सेकेंड, मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली स्किप दी टॉपिक्स दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग.
they are weak in certain topics. For example, many people think that they are not good at PNC geometry and they decide कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं, अपने अच्छे अच्छे चैप्टर्स कर लेता हूँ. Now this is very wrong. मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि पूरा कोर्स फिनिश करो. हर टॉपिक का सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. एक्चुअल पेपर में आपको थोड़ी पता है कि लॉग आपका अच्छा और वो लॉग का एकदम अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे. एक्चुअल पेपर में अगर लॉग का बहुत टफ क्वेश्चन आ गया देन विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सो दैट इज व्हाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने पीएनसी पूरा स्किप किया और वहां पे एक क्वेश्चन था जो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत ही डायरेक्ट था, एंड आपने पीएनसी किया नहीं एंड यू लॉस्ट योर 4 मार्क्स. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फिनिश एंटायर कोर्स, एंटायर सिलेबस एटलीस्ट एट लेवल 1. हर चैप्टर का लेवल 1 होगा. उसके बाद आपको आईपी मैट प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं. क्या करना है, जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है आपको आईपी मैट प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं और सारी लैंग्वेजेस, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को खुद से ऑब्जर्व करना है. किसी और से मत पूछिए, मुझसे मत पूछिए, खुद का एनालिसिस बनाइए कि ये जो चैप्टर्स है मुझे इनकी बहुत अच्छी बिल्ट है, ये चैप्टर्स मेरे लिए अच्छे हैं. जैसे कुछ हो गया सीरीज हो गया, मेरा सीरीज बहुत अच्छा है, लॉग अच्छा है, क्वाड्रेटिक्स अच्छा है, मेरा ग्रामर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट आरसी में मैं बेकार हूं. ठीक है, तो क्या करना है, सेम ऐसा हो सकता है मैं पीएनसी ज्योमेट्री पसंद नहीं है, आता नहीं है, बट मैं इन चैप्टर्स में अच्छा हूं. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी स्ट्रेंथ चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स पता है, फिर उनके साथ कैसे डील करना है. स्ट्रॉन्ग एरियाज में मोर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए. अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लगाइए. जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टैंडर्ड डिफिकल्ट लेवल के प्रैक्टिस करिए. वीक चैप्टर्स के लिए थ्योरी रिवाइज करते रहिए. What I mean by focus on theory कि एटलीस्ट आपको जो जो चैप्टर्स बने नहीं थे, अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी जो फंडामेंटल्स है, कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे पीएनसी का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें परमोटेशन कब लगाना है, अरेंजमेंट कब लगाना है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन मत लगाइए. फॉर अ रीजन दैट आई एम आस्किंग यू टू नॉट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन इन द वीक एरियाज. होता क्या है कि अभी हमारे लिए टाइम इज ऑफ द एसेंस. अगर मैं वीक एरियाज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता हूं तो वो मेरा टाइम रिलेटिवली डबल और ट्रिपल द टाइम दे विल कंज्यूम, क्योंकि मुझे वो 10 क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूं, एंड वो 10 क्वेश्चन 1 घंटा ले लेते हैं. बट जो टॉपिक्स आपके लिए अच्छे हैं वो 10 क्वेश्चन आप 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लोगे. तो इसमें 1 घंटा देना इज नॉट अ स्मार्ट मूव. रादर मैं 10 क्वेश्चन की फंडामेंटल समझ लेता हूं, 10 टफ क्वेश्चन उठा के उनके सॉल्यूशंस देख लो, चलेगा, बट अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को प्रैक्टिस करते रहो. सो यू गॉट द डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू डील विद योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है और वीक कॉन्सेप्ट. लास्ट एंड फॉरमोस्ट, You should know what is your level according to your previous year papers. आपके पास 2 साल के previous year papers 1920 के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैंने वो वाले चैप्टर्स को उन लेवल पर कर लिया है ना. आप डोंट थिंक दैट कि मेरा सब हो गया है और एक्चुअल में रियलाइज होता है आपने सब बहुत इजी चीज़ें की थी ऑल ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, और एक्चुअल आईपी मैट इंदौर में तो काफ़ी अच्छा लेवल टेस्ट किया जाता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड एक्चुअल में तो इजी क्वेश्चंस आते हैं. तो आईपी मैट प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज़ करिए फॉर योर एनालिसिस एंड to plan things out. So best of luck. This is all from my side. Give important to revision, very important, and keep taking tests. Every 7th day, every 8th day आपको एक mock attempt लगाते रहना है. mock attempt से analysis करना है और अपने strong weak areas पे work करते रहना है. Thank you. So this is all from my side. Best of luck. So now, how can we get you started? Go to asaipm.com. Over here, you will see the free counseling button. Click on that. Enter your details, and a future senior of yours from IIM is going to give you a call, and you can get all your doubts clarified from them.